Good afternoon. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institute. Our contact number is +917696734256. Yesterday, when we did OET writing, we had a discussion regarding discharge plan and the last paragraph of the discharge plan, which is very important. So how to write the discharge plan. And today we have got the visit letter. So these are the two major letters which come in OET: discharge letter, visit letter, and the third one is discharge back letter. So we have got different playlists in our YouTube channel. So if you scroll down different playlists, you will get to know about different kinds of letter that come in the exam. And yesterday we had a letter with to parents and grandparents. So today we have this visit letter. So I will tell you a simple pattern and you will see that everything will go according to the pattern, this visit letter pattern. So please try to memorize it and it will do wonders for you. This visit letter pattern will do everything for you. This letter, सबसे first paragraph is purpose. This letter is being written regarding Mr. X who has been diagnosed with. अगर diagnosed word दिया है, अगर उसको assess किया गया है तो लिखो assessed with. अगर suspected, अगर question mark के साथ दिया है तो लिखो suspected with. Who has been suspected with. Suspected का मतलब शक है. जो भी disease दिया आपको today की, बस on the basis of current signs and symptoms. इसमें today की disease लिखनी है. यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. Today's disease. ये पैटर्न है, प्लीज इसे अच्छे से समझ लेना and you would be all good to go. So this is Dr. Bhupesh and I assure you that you will pass if you will follow this pattern. But again थोड़ा सा दिमाग लगाते रहना, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन करनी पड़ती है, वो हम लेटर के हिसाब से करते रहेंगे. So ये आज का, तो हम जिसको लेटर लिख रहे होते हैं मोस्टली विजिट लेटर आपसे सीनियर डॉक्टर को जाता है, क्योंकि उस आपको पेशेंट को, विजिट वाले पेशेंट को किसी सीनियर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में भेजना होता है. So this letter is being written regarding Mr. X who has been diagnosed or assessed or suspected with this disease on the basis of current signs and symptoms. So उसको ये disease है तो disease बड़ी होती है. So he is being referred under your expertise. तो senior doctor को कहते हैं हम आपकी expertise में भेज रहे हैं on urgent basis. So this is the first paragraph. Second paragraph, जो भी उसकी social history और medical history है. Mr. X is a known case of जो भी आप बताना चाहते हो कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, केस ऑफ डायबिटीज, जो भी उसको प्रॉब्लम है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड दिस, जो भी. अगर इसके अलावा कुछ सोशल हिस्ट्री बताना चाहते हो, मान लो साइकेट्रिस्ट को लेटर लिख रहे हो तो साइकेट्रिस्ट के केस में सोशल हिस्ट्री भी चाहिए होगी. तो बिसाइड्स ही लिव्स अलोन एंड इज हैविंग प्रॉब्लम विद हिज वाइफ, जो भी, मतलब अगेन जो भी हो सकता है. तो ये सोशल हिस्ट्री. So social history and medical history, second paragraph. Third paragraph. First visit. On first visit, डेट डालनी है, उसकी विजिट की डेट डाल दो 28 जनवरी. जे बड़ा छोटा नहीं करना, गलती से भी मार्क्स कटेंगे. 1998 सपोज 1987. On first visit, the patient complained of, क्योंकि सबसे पहले पेशेंट अपनी कंप्लेंट बताएगा जिस भी विजिट में, कंप्लेंट ऑफ दिस थिंग. अगर इसके अलावा कंप्लेंट लंबी है तो 2 में डिवाइड करो. along with that he was also having, जो भी उसकी एक्स्ट्रा कंप्लेंट्स हैं. उसके बाद कंप्लेंट्स के बाद हम मेडिकल में हमेशा एग्जामिन करते हैं. ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट हमारे द्वारा पाएगा, पैसिव वॉइस, इसके मार्क्स हैं. द पेशेंट वाज फाउंड विद, जो भी आपने उसके साइंस, क्योंकि सिम्टम्स पेशेंट बताते हैं कंप्लेंट में, अब एग्जामिनेशन में हमें साइंस पता लगेंगे. जो भी साइंस हैं लिख दो. अब सिम्टम्स और साइन के बाद क्या बनता है, डायग्नोसिस. पर इस केस में पेशेंट हमेशा सस्पेक्टेड रहेगा क्योंकि पक्का नहीं होगा. तो सस्पेक्टेड को आप दूसरा वर्ड लिख सकते हो. सो ही वाज प्रोविजनली डायग्नोस्ड विद, तो ये एक वर्ड यूज कर सकते हो, दिस, जिसके लिए हमने उसे ये मेडिकेशन दी, फॉर विच PCM वाज गिवन. मेडिकेशन का नाम लिख के जो भी वहां पे दिए. अगर इसके साथ रेस्ट भी गए, ऑल्सो ही वाज सजेस्टेड टू टेक रेस्ट.
ऐसे बिल्कुल सिंपल चलता है, दिस इज द पैटर्न। सेकंड विजिट भी सेम होगी। ऑन सेकंड विजिट सेम पैटर्न, पेशेंट कंप्लेन करेगा। अगर सेकंड विजिट में उसके सिम्टम्स वर्स हो गए तो सिम्टम्स को रिपीट मत करो अगर सेम सिम्टम्स है। ऑन सेकंड विजिट ही हैड सेम सिम्टम्स बट दोज सिम्टम्स वर वर्स देन प्रीवियस टाइम। तो अगर पेशेंट की हालत खराब हो रही है तभी वो पेशेंट एक्सपर्ट के पास जा रहा है तो सिम्टम्स तो वर्स हुए होंगे। तो ये लेटर के हिसाब से लिखना है, बट मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मोस्टली ऐसे होता है, वर्स देन प्रीवियस टाइम। तो जब पिछली बार आया था ही हैड सेम सिम्टम्स, बिल्कुल सेम सिम्टम्स है बट सिम्टम्स पहले हैं। अगर कोई एडिशनल सिम्टम आया तो उसको ऐसे अलग से लिखो, इन एडिशन ही ऑल्सो हैड दिस एंड दिस, जो भी ही ऑल्सो हैड दिस एंड दिस, बाकी सिम्टम्स। सो ऑन एग्जामिनेशन को दोबारा लिखने के बजाय वर्डिंग चेंज की, ऑन असेसमेंट he was found with same। अब सो की बजाय थोड़ा सा यहाँ पे सो कनेक्टर था तो hence at that time, एट दैट टाइम को ऐड किया कि उस टाइम पे हमें, उस टाइम पे मतलब सेकंड विजिट जो भी, चाहे 2 दिन पहले थी चाहे 3 दिन पहले, hence at that time he was suspected, सस्पेक्टेड वर्ड को अब यूज कर सकते हैं, नहीं तो he was, या इसको ऐसे कर सकते हो एट दैट टाइम प्रोविजनल, छोटा सा चेंज कर दो, प्रोविजनल डायग्नोसिस जो भी दूसरी बार दी है ये भी सस्पेक्टेड वाली ही है, डिजीज का नाम वॉज मेड। तो ये लिखने का दूसरा तरीका है, नहीं तो अगर जरा सा भी कंफ्यूज होते हो वैसे लिख दो ही वाज सस्पेक्टेड विद, लेकिन ये बहुत अच्छा लगेगा, हैंस एट दैट टाइम प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ जो भी डिजीज का नाम है वॉज मेड, तो हमने, हमारे द्वारा बनाई गई पैसिव वॉइस, तो प्रोविजनल डायग्नोसिस ये सेम ही बात है, ही वाज प्रोविजनली डायग्नोज विद, ओनू प्रोविजनली डायग्नोज किया गया साडे द्वारा, एक को ही गल है। वैसे ही प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ दिस वॉज मेड, तो दोनों एक ही बात है। तो फॉर विच बार बार लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो चेंज करके एंड फॉर दैट, एंड बार बार लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा तो चेंज करके एंड फॉर दैट, एंड का यूज करना है प्लीज। फॉर विच के साथ एंड की जरूरत नहीं पड़ती, विच के साथ, लेकिन दैट के साथ पड़ती है। एंड फॉर दैट ही वॉज गिवन, जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया, तो ये चेंज करके बस ऐसे लिखना होता है। रट्टा मत मारना प्लीज, समझो। आप ऐसा नहीं है, आप इस चीज को उठा के यहां पे रख सकते हो और इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों बातें सेम है कि ऊपर नीचे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, कि ऐसा नहीं आपको रट्टा ही मानना है। इस ओन असेसमेंट की जगह यहाँ पे ऑन एग्जामिनेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है रट्टा मारना है, बस ये चेंज करने को कह रहा हूँ मैं आपको, और यहाँ पे इसको उठा के ऑन असेसमेंट लिख दो, उल्टा कर दो बस। सो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल द सेम थिंग, एंड आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये पैटर्न है, पहले पेशेंट कंप्लेन बताएगा, फिर साइन होंगे, फिर डायग्नोसिस होगा, फिर ट्रीटमेंट होगी। सो दिस इज हाउ दिस लेटर विल गो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जो आज की विजिट है, आज की विजिट के साइन और सिम्टम कभी फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं बताने, इसलिए मैंने सीधा डायग्नोसिस वाला पार्ट लिखा है। सो टुडे पेशेंट हैज विजिटेड अगेन, आज फिर आया है, एंड देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन इस कंडीशन। आज भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी तभी तो बड़े डॉक्टर के पास भेज रहे हैं, अगर ठीक हो जाता तो हम क्यों भेजते, और ये लेटर ही क्यों होता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम ऐसे ही लेटर रहेगा, प्लीज समझो कि कंडीशन खराब होगी। तो विजिटेड अगेन एंड देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन। अगर अच्छी लाइन लिखनी है, रादर हिज सिम्टम्स हैव गोट वर्स, लेकिन होने चाहिए, आप अपनी तरफ से मत लिखना, मैं बस आपको लाइन बता रहा हूँ, रादर हिज सिम्टम्स हैव गोट वर्स। सेम ऑन एग्जामिनेशन भी हो गया, ऑन असेसमेंट भी हो गया, तो और क्या अलग लिख सकता हूँ, तो ये वाला वर्ड बेस्ट है, ऑन बीइंग एग्जामिन्ड ही हैज बीन फाउंड विद। आप एक बात नोट करो, जब से टुडे की विजिट आई है मैंने सब कुछ प्रेजेंट में कर दिया है, हैज विजिटेड, पहले सेकंड फॉर्म चल रही थी, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट होता है, तो अब ये सब कुछ प्रेजेंट में आ गया है।
और जब पास्ट में पैसिव वॉइस यूज होता है, पैसिव वॉइस का मतलब जो काम हमारे द्वारा किया जाता है उसके साथ वॉज थर्ड फॉर्म होता है, वॉज गिवन, पेशेंट वॉज फाउंड विद हमारे द्वारा, पेशेंट वॉज डायग्नोज विद हमारे द्वारा, पीसीएम वॉज गिवन। और जब प्रेजेंट में ये पैसिव वॉइस होता है तो वॉज का हैज बीन बन जाता है। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को 10-20 बार सुन लो और ये गलती मत करना कि भाई हैज बीन फाउंड लिखना है टुडे में, ऑन बीइंग एग्जामिन्ड ही हैज बीन फाउंड विद, जो भी आज के साइंस सिम्टम होंगे। सो प्रोविजनल डायग्नोसिस की जगह अब यूज कर लो टेंटेटिव डायग्नोसिस। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ऑफ दिस हैज बीन मेड, अगेन वॉज मेड की जगह हैज बीन मेड। और ये वाली जो डिजीज होगी ये टुडेज डिजीज होगी, सेम जो फर्स्ट पैराग्राफ में रिपीट हुआ है। तो यानी कि सिर्फ एक ही चीज है जो पूरे ओईटी के लेटर में, विजिट लेटर में रिपीट करेगा, वो है टुडे के डिजीज का नाम। सिम्टम्स तो ऊपर हमने डाले ही नहीं, यहाँ पे डाले हैं सिम्टम्स तो ऊपर और नीचे में ये फर्क रहेगा, सिर्फ टुडेज डिजीज रिपीट होगा और कुछ भी रिपीट नहीं होगा। और फिर यहीं पे कह देंगे जिसके लिए फॉर विच योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड। दिस इज द विजिट लेटर पैटर्न। प्लीज इसको 5 बार सुनना, 10 बार सुनना, अच्छे से सुनना। आई नो मेरे लिए लिखना बड़ा आसान है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करते हुए 8 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन आप प्लीज, अब मैं आपको इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो अप्लाई करने में। सो आई एम गोइंग टू टेक यू टू टुडेज लेटर और देखना कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आज की असेसमेंट क्या है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विद अर्ली रीनल फेलियर, और लेटर किसको लिख रहे हैं, पेडियाट्रिशियन को। पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का नाम है जेमी ब्राउन। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विद अर्ली रीनल फेलियर। सो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा ये था जो हमने बनाया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर, तो ये छोटा बच्चा है तो मास्टर, फर्स्ट नेम। जब छोटा बच्चा होगा फर्स्ट नेम, नहीं तो हमेशा ओईटी में सेकंड नेम यूज होगा। सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मास्टर जेमी हु हैज बीन डायग्नोज विद, या देखो डायग्नोज है या सस्पेक्टेड है। तो एक बार सेकंड पेज पे चलते हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे असेस्ड, तो मैंने कहा है जो वर्ड आपको दिया है वही वर्ड आपने लिखना है, तो मैं आपको वही वर्ड लिख के दिखा देता हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगेगी मेरे को टाइप करने में, पर प्लीज आप पेशेंटली इसको समझो, आपके बहुत काम आएगा एंड इट वुड बी वेरी हैंडी फॉर यू। सो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। सो दिस लेटर इज बीन रिटन मास्टर हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद, तो यहाँ पे दे रखा है असेस्ड वर्ड, तो मैं ये सस्पेक्टेड वर्ड हटा देता हूँ और डायग्नोज। प्लीज इसे अपनी कॉपी में लिखना साथ साथ। तो असेस्ड विद, जो टुडे की डिजीज है यहाँ पे दी है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विद अर्ली रीनल फेलियर। तो मैं लिखता हूँ असेस्ड विद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस। जो स्पेलिंग है स्पेलिंग देख के, और मेरी स्पेलिंग के लिए प्लीज मुझे फॉरगिव करना, और पेपर में आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते तो प्लीज ध्यान से। तो ये लो, ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। हैज बीन सस्पेक्टेड विद स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विद अर्ली रीनल फेलियर, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हिज करंट साइंस एंड सिम्टम्स। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज समझ आ रही है, यहाँ पे करंट साइंस और सिम्टम्स की बजाय शायद थोड़े से टेस्ट भी किए गए हैं, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। ASOT, तो यानी इन्वेस्टिगेशन भी हुई है और इसके सिम्टम्स तो हैं। सो पोस्ट एक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ करंट साइंस एंड सिम्टम्स अलोंग विद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। तो बस ये वर्ड ऐड कर देना। इन्वेस्टिगेशन भी दे रखी है तो अलोंग विद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ आप सबके लिए। सो यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है। So this letter is being written regarding Master Jamie, who has been assessed with post-streptococcal nephritis with early renal failure on the basis of current signs and symptoms along with investigation reports. ये गलती से यहाँ पे सिम्टोमेटिक दे रखा है, यहाँ पे सिम्टोमेटिक है, पेशेंट अभी भी सिम्टोमेटिक है तभी तो भेज रहे हैं। ठीक है, इज इट ओके फॉर एवरीवन? तो आगे चलते हैं। फिर बाकी सेम लाइन, सो ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज ऑन अर्जेंट बेसिस। ठीक है, यानी पेडियाट्रिशियन को कह रहे हैं हम आपके पास भेज रहे हैं इस बच्चे को क्योंकि हमसे ठीक नहीं हो रहा, और इसकी अभी असेसमेंट की है और इसकी रिपोर्ट्स बता रही है कि बहुत ज़्यादा है यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह। फिर अब पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री तो दे नहीं रखी, तो जो हमने 5 पैराग्राफ्स करवाए थे
वो हमारे 4 पैराग्राफ। ये हमसे ठीक नहीं हो रहा और इसकी अभी असेसमेंट की है और इसकी रिपोर्ट्स बता रही है कि बहुत ज़्यादा है यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह। फिर अब पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री तो दे नहीं रखी, तो जो हमने 5 पैराग्राफ्स करवाए थे वो हमारे 4 पैराग्राफ्स रह जाएंगे। तो ऑन फर्स्ट विजिट देखते हैं दोबारा। थोड़ी सी मेहनत लग रही है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी आसानी से। सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो इसको हम गायब कर देते हैं। लेट्स इरेज इट ऑल। इन्वेस्टिगेशन की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। प्लीज स्पेलिंग ठीक कर लेना यार प्लीज, दैट इज माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल हु आर फॉलोइंग अस ऑन यूट्यूब। लेकिन आपको पैटर्न समझ आ जाएगा सारा। ऑन फर्स्ट विजिट, अब ये विजिट क्या दिया है 20 दिसंबर, तो यहाँ पे लिख दो 20 दिसंबर। मतलब पूरा पैटर्न के हिसाब से चलना है। तो ये पैटर्न करने से आपको बहुत फायदा होगा। 20 दिसंबर 1989 ही हैड सिम्टम्स। अब सिम्टम्स के यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से सिम्टम्स दे रखे हैं हमें। तो सिम्टम्स दे रखे हैं सोर थ्रोट, हस्की वॉइस, फेब्राइल एंड इरिटेबल। तो आराम से आप यहाँ पे लिख दोगे। अब मैं आपको बोल के बता देता हूँ। सो ही हैड सोर थ्रोट एंड हस्की वॉइस। Also, along with that, he was febrile and irritable, and his temperature on examination, his temperature was itna, and he had large infected tonsils with accelerate. Along with that, there was presence of tendal and large cervical nodes as well. So he was assessed with tonsillitis, for which penicillin was prescribed for 7 days. ऐसे आराम से चलेगा। अब 20 दिसंबर के बाद डेट है 28 जनवरी, यानी लगभग 10 + 28, यानी 10 डेज तो दिसंबर के और 28 की, ऑलमोस्ट 38 डेज। सो लगभग आप ये, या फिर इसमें डेज काउंट ही मत करो, वैसे तो 40 डेज के आसपास बन रहे हैं, बट ये लिख दो। ऑन 28 जनवरी ही विजिटेड अगेन with his mom, and she reported that Jamie had brown urine 4 days ago. Also, she told that he was tired and lethargic. So on assessment, तो मैंने कहा था examination की जगह assessment. On assessment, he had tonsillar hypertrophy and his urinalysis showed, सिर्फ showed word डालना है, showed macroscopic hematuria. So he was suspected with, जब 2 प्रॉब्लम्स दी हो तो हमेशा लिखो आइदर और। सो ही वाज सस्पेक्टेड विद आइदर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस और यूटीआई, इन दोनों में से एक। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इस लेटर में आप सीख सकते हो। जब आपको 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हो तो उसको आइदर और में लिखना है। सो ही वाज सस्पेक्टेड विद आइदर दिस और दिस। फिर अगेन एंड फॉर दैट सेम पैटर्न, ही वाज एडवाइज्ड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. Also, he was suggested to undergo few investigations such as ASOT, जो investigations लिखी हैं, electrolytes, ASOT and urea and creatinine. So फिर today की visit आ जाएगी. Today the patient is still symptomatic. आज भी symptomatic है, ये word गलत दे रखा है. And his urinalysis has again shown macroscopic hematuria. His urea, creatinine along with ASOT are elevated. So he has been assessed with post-streptococcal nephritis with early renal failure, for which your expertise is highly required. पूरा पैटर्न के हिसाब से। सो मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग है। आप प्लीज इस रिकॉर्डिंग को 2 बार 3 बार सुनिए, एंड दिस रिकॉर्डिंग विल हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and our number is 7696734256. And trust me, this is the easiest method of visit letter. बस थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा. मैंने आपको letter with example करवा दिया, so it will definitely help you. If you have any doubts, please leave your doubts in the comment box. Thank you. Please like, subscribe, and hit the bell icons for the free OET coaching videos.